जीरो बेस्ड बजटिंग की अगर हम बात करेंगे तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग में हमने जैसे देखा कि इंक्रीमेंटल बजटिंग था, है ना। जब हमने इनपुट बेस्ड बजटिंग देखा था तो हमने क्या देखा कि जैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ एलोकेशन इज मेड, द एलोकेशन इज मेड फॉर लेट्स से एजुकेशन, हेल्थ केयर, and let's say defense. If we are making the allocation in education healthcare, let's say in 2015-16, the allocation is made in education 10,000 crore rupees. Same in the healthcare, 20,000 crore rupees. And in the defense, let's say 30,000 crore rupees is the allocation made. Now, next year, when the budget has to be made in 2016-17, then we will take into consideration the previous year allocation, right? It was called as incremental budgeting. So we will take into consideration that, last year we made an investment or we made an expenditure of 10,000 rupees in education. So this year we will increase the allocation. So let's say the 10% increment made and it would be, let's say 11,000, right? This is 11,000. This is the allocation that is made. Similarly, we do the similar kind of things. Normally, this is the practice that is adopted, right? Incremental budgeting or the other kinds of budgeting में भी we take into consideration the previous year का जो allocation है उसके आधार पे. But the zero-based budgeting says that when I have to make the budget for this year, 2016-17, I would not consider it as my base, right? This is not my base. Zero base. I am considering that I have allocated 0 rupees in education. Now, I will not consider it as a base. Rather, if I will prepare the budget as this budget 2015-16, like at this point of time, what I mentioned that 10,000 crore rupees is the done, and that is the allocation that has been made in education. I have not mentioned it that it is based on the 2014-15. I have not mentioned it so far. So let's say as if that the budget is prepared for the first time in this 2015-16. So let's say this is prepared for the first time in 2015-16. It has not taken into consideration any base as of now here in this table. So similarly, this year in 2016-17, when I will prepare the budget, I will not take into consideration the previous year allocation. The allocation for this year would solely depend on this year's requirement. That what is the requirement for this year, I will make allocation accordingly. It's not the incremental budgeting, rather it will take into consideration कि previous year 0 है, and if I have to इस ईयर मुझे क्या क्या करना है. अब मान लीजिए कि इसमें आई हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर लेट्स से टीचर ट्रेनिंग, लाइब्रेरी फैसिलिटी, और मान लीजिए दिस ईयर आई डोंट नीड टू मेक मनी फॉर लेट्स से स्कूल बिल्डिंग. इसके लिए जरूरत नहीं. अगर इसके लिए जरूरत नहीं है तो स्कूल बिल्डिंग पे जो हम पैसा दे रहे थे वो पैसा तो कट गया. अब पैसा तो किसके लिए आएगा? केवल यही 2 के लिए आएगा. तो टोटल बजट आउटले क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो लास्ट ईयर के बेसिस पे आई एम नॉट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. I will allocate the resources on the basis of this year's requirement. So it's like making the budget from the scratch every year. हर साल बजट का एस्टिमेशन बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, स्क्रैच से हो रहा है ना. तो इसीलिए जीरो बेस बजट दैट प्रीवियस ईयर के एलोकेशन पे डिपेंड नहीं होता है, इस ईयर के एलोकेशन पे डिपेंड होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड बजटिंग, राइट. नाउ when I will be allocating the money for the purpose under the zero based budgeting, what happens? तो पहली चीज है कि जो प्रीवियस स्कीम्स चले आ रहे हैं उनका सनसेट हो जाता है ना. तो एक सनसेट क्लॉज इसमें से आ गया, ऑटोमेटिक सनसेट हो गया. सनसेट का मतलब है इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. हमारे यहां दिक्कत क्या होती है? व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम तो हमें उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना पड़ता है, एंडलेस कंटिन्यू करता है. उसकी जरूरत आज है या नहीं है, इस चीजों को नहीं देखा जाता है, हम उसमें एलोकेशन करते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा. अब किसी ने एमजी नरेगा बना लिया,
तो या अब ये पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता है दैट यू नीड टू कंटिन्यू दैट, है ना, कंटिन्यू द एमजी नरेगा स्कीम. So you are required to make certain allocation in that particular scheme, right? Irrespective of the fact whether how much money is being utilized or not utilized. Let's say I allocate 1 lakh crore rupees. Then I am able to utilize only 60,000 crore rupees. The rest 40,000 crore rupees is not utilized. Then it goes back into the account, right? So in that case, what will happen? That it is inefficiency of the capital. तो कैपिटल का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया. अगर मैं इसी को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर देता तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बोरो किया उसने बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, वो तो यहीं से फिर पैसा निकाल लेता है ना. तो इसीलिए ये पैसे की इनएफिशिएंसी हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए कि इस साल की क्या जरूरत है उसके हिसाब से करें. जो प्रोग्राम्स अब रेलिवेंट नहीं है, आई शुड डिसकंटिन्यू दिस वन. तो डिसकंटिन्यू यानी कि एक सर्टेन पीरियड होता है, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनका गवर्नमेंट अब से सनसेट क्लॉज लाने लगे दैट दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स लेट्स से. तो 10 इयर्स के बाद वो ऑटोमेटिक जो है उसका एलोकेशन बंद हो जाएगा, है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है, एवरी टाइम एवरी प्रोग्राम इज रिव्यूड. तो वहां पे अगर मान लीजिए किसी प्रोग्राम में अब उसकी यूटिलिटी उस तरह से नहीं है तो उस प्रोग्राम में एलोकेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा. तो एक फायदा होता है, दिस विल इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी इन अ बेटर वे. तो जो भी कैपिटल है, अब कैपिटल किसी को इतने प्रोग्राम्स हमने सब में कर दिया, 600 प्रोग्राम है, सब में हमने एलोकेशन कर दिया, लेकिन सभी प्रोग्राम्स की यूटिलिटी नहीं हो रही है. लास्ट में रिजल्ट ये होता है कि वो सारे पैसे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस आ जाता है. तो दिक्कत है ना, मनी का हम यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे. तो एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल जो है वो बढ़ती है इसके अगर हम जीरो बेस्ड बजटिंग पर फोकस करते हैं. तो जीरो बेस्ड बजटिंग पर अगर हम फोकस करते हैं तो अननेसेसरी जो कॉन्टिन्यूएंस होता है, प्रोग्राम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है. बजट का साइज लीन एंड थीन किया जाता है ना, स्ट्रक्चर्ड किया जाता है. रैशनैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, that if I am doing expenditure this year, what is the rationality of that expenditure, उसको हम बेटर तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंतर्गत. So there are multiple benefits of this zero based budgeting, but then there are problems also. That the one and the most important problem is that the budget making is a mammoth exercise. ठीक है, तो हम ऐसे ही अगर बजट बना रहे हैं तो भी हमें ऑलमोस्ट 1 साल तो लग जाता है, पास होने तक तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक का टाइम लग जाता है. ठीक है, आजकल थोड़ा 2 महीने कम किया है तो 8 महीने का टाइम तो बिल्कुल लगता है. अगर आप अगस्त से देख लीजिए तो अप्रैल तक, है ना, मार्च 31 तक ये लगता है टाइम आपको. सो ऑलमोस्ट 8 महीने का टाइम लग जा रहा है. सो एक मैमथ एक्सरसाइज है. हमारे जैसे कंट्री के लेवल पे क्या ये पॉसिबल है कि हर बार स्क्रैच से बनाया जाए? इट्स नॉट पॉसिबल. अगर हर बार ऐसे बनाया जाए तो 3 साल लग जाएंगे बजट बनाने में, तो इंप्लीमेंट कब होगा, है ना. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस और बिग कंट्रीज टू फॉर्म द बजट फ्रॉम स्क्रैच एवरी ईयर. दैट इज वन. ठीक है, दिस इज गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसान है कि वो कर ले, लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हर चीजें राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम बनाएं. ठीक है, it is not viable in a country like India. The another problem that we see with the zero based budgeting, that zero based budgeting में अगर किसी प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करना है then we need the empowered individuals, है ना. सबसे पहले यहां तो बात है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से पॉलिटिशियंस ऑल्सो डोंट टेक द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द प्रोग्राम. सो आप समझिए कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे इस डिसीजन को ले सकता है. तो ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया आर नॉट सो एम्पावर्ड इनफ टू टेक सच डिसीजन. सो देयरफॉर हमारे पास कैपेबिलिटी भी उस तरह की नहीं है, यानी कि वी डोंट हैव दैट ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच कैन कैरी आउट सच प्रोग्राम. ठीक है, अनदर प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरह के प्रोग्राम्स को आप बनाते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम्स में हर बार रैशनैलिटी जो मतलब द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बजट वुड बी टू हाई. तो इसलिए जीरो बेस्ड बजटिंग हैज सर्टेन बेनिफिट्स एंड सर्टेन चैलेंजेस आल्सो. For more informative content, like, share and subscribe,
And do not forget to press the bell icon to get the notifications.